Sometimes I will be out of state or out of country also. कुछ वक्त ऐसा रहेगा कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से बाहर रहूंगा या फिर मैं भारत देश से बाहर रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If you every time dependent on me, और हर वक्त आप मुझ पर अवलंबन रहेंगे, so sometimes you cannot receive something from me. और कुछ उस वक्त आप कुछ भी मेरे से रिसीव नहीं कर पाएंगे। But whenever you will be dependent on God, और हर वक्त जब आप परमेश्वर पर अवलंबन रहेंगे, available or not available, अगर अवेलेबल आपका मत है या नहीं है, still you can receive something from God which तो भी आप कोई भी चीज पा सकते हो will help you in your problem. जो आपकी समस्या को हल कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Every time be dependent on God, not on the people, not on the kings, or not on anyone. हर वक्त आप परमेश्वर पर अवलंबन रहिए, ना कोई राजा पर, ना कोई प्रजा पर, ना कोई व्यक्ति पर। Hallelujah. हालेलुया। David was dependent on God. पर दाऊद जो था वो परमेश्वर पर अवलंबन था। So the kingship was coming to him. और इसलिए जो राजाधिकारी था वो उस पर आ रहा था। He did not went to the kingship, but kingship was coming to him. जो राज्य करने का जो अधिकार था वो उसके पास आ रहा था। Hallelujah. Hallelujah. David went to Samuel, or Samuel came to David and anointed David, king's anointing. क्या दाऊद सैमुअल के पास गया? सैमुअल जो था नबी था वो दाऊद के पास आया। Who came to whom? कौन उसके पास आया अभिषेक करने के लिए? Samuel came to. सैमुअल। So when you are dependent on God, God Himself will come and answer you in every problem. जब आप परमेश्वर पर अवलंबन रहेंगे तो परमेश्वर हर वक्त अपने आप को आपके सामने ले आएगा ताकि आपकी समस्या दूर हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So every time be dependent on God. इसलिए हर वक्त हमें परमेश्वर पर अवलंबन रहना So है। when you are dependent on God, और हर वक्त जब आप परमेश्वर पर अवलंबन रहते हैं, you will receive something great from God. उस दिन आप परमेश्वर से कुछ तो पाने वाले हो। Something great from God. परमेश्वर से कुछ अच्छी बातें को पाने वाले हो। Hallelujah. हालेलुया। The enemy you encounter is due to your dream you have in your life. जो शत्रु आपके जीवन में आया है वो आपके हर एक स्वप्न को तोड़ने के लिए आया है। He came. No, the enemy which you encounter in your life जो शत्रु आपके जीवन में आ रहा है is because God has kept something in your life. वो इसलिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ लिख के रखा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Think, if there is a tree, सोचिए अगर कोई पेड़ है, there is one tree here, there is one tree here. एक पेड़ यहाँ पर है और एक पेड़ यहाँ पर है। In this tree, whole mangoes are filled with this tree. एक पेड़ पूरी तरह आम से भरा हुआ है This tree is withered and no fruits. और दूसरा जो पेड़ है जिसमें कोई फल नहीं है। Now tell me, church, तो बताइए मुझे कलीसिया, you will take a stone on which tree you throw? और पत्थर को लेंगे और कौन से पेड़ पर उस पत्थर को मारोगे? The tree on which fruits are there, or the tree which fruits are not there? जिस पेड़ पर फल है या जिस पेड़ पर फल नहीं है? जिस पेड़ में फल है। जिस पे फल नहीं है। This will find it. जिसमें फल है। Hallelujah. हालेलुया। So enemy is coming to you because God has kept something in you. और इसलिए शत्रु आपके पास आया है क्योंकि परमेश्वर ने आपके पास कुछ तो रखा है। Hallelujah. हालेलुया। God has kept something for you. परमेश्वर ने कुछ तो आपके लिए रखा है। Everyone say something in me. Something in me. और एक बोलिए कि मेरे अंदर कुछ तो बात है। Something in me. कुछ तो बात है। Something in me. कुछ तो बात है। Greater than devil. और शैतान से भी बढ़कर Something in me. कुछ तो बात है। Hallelujah. Hallelujah. When you say like this, और जब आप इस बात को कहते हो you will see something happening great in your life. और आप कहते हो, आप जब इस बात को कहते हो तो आप देखेंगे कुछ तो अच्छी बातें आपके जीवन में घट रही हैं। Hallelujah. Hallelujah. So this is what, church, I want to tell you today. और यही बातें मैं आप मेरी कलीसिया में आपसे कह रहा हूँ। First thing, पहली बात, if you are not changed, you are stuck. अगर आप बदले नहीं हो तो आप एक जगह पे रुके हुए The हो। enemy came to give you victory. अगर शत्रु आपको विजय पाने के लिए आ रहा है, The enemy came to give you victory. अगर शत्रु आप पर विजय पाने के लिए आ रहा है, You cannot go forward. आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। The enemy only makes you to push back. वो शत्रु हमेशा आपको पीछे जाने के लिए आ रहा है। But when you just keep a foot forward, और जब अपने आप को एक कदम आप आगे बढ़ाते हो, then remaining step God will help you out. और आगे का जो आप रहा है, वहाँ पर आगे के जो फुटस्टेप है आपके, वहाँ पर परमेश्वर आपको आगे लेके चल रहा है। You know the story of Peter and Jesus? और आपको उस कहानी को पता है जो प्रभु यीशु मसीह और पतरस की है। Peter walked on the water. How many people know that? कितने लोग जानते हैं कि पतरस उस पानी पर चला?
You know what is the revelation hidden in that? और आपको पता है कि क्या प्रकाशन उसके अंदर है? Something is hidden in that. कुछ तो बातें उस कहानी में है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So Jesus was walking in the water and he was coming. प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे And Peter saw Jesus. और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा So he said, Jesus, I also want to walk on the water. और उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे भी पानी पर चलना है। Then what Jesus said? तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? What he said, church? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा? What he said? क्या कहा? Come. आजा, Come. आजा, Come. आजा। Only this he said? क्या इतनी सी बात उसने कही? नहीं। From the flesh he said, come. उसने शरीर से आने के लिए कहा In the spirit he said, the water bind up, my son is coming. और उसने कहा कि हे पानी तू दोनों तरफ से डूबन हो जा, अलग हो जा, ताकि मेरा पुत्र उसमें से चल के आ रहा है। Bind up. अलग हो जा, Bind. एक हो जा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So he was saying to Peter, by the flesh, come Peter, come now. और इसलिए वो शरीर से कह रहा था पतरस तू आ जा And in the spirit he was saying, water, be careful, my son is coming. If you go down, then you are over. और इसलिए तब वो पानी से कह रहा था कि हे पानी तू सुन, मेरा पुत्र आ रहा है, तू एक हो जा ताकि मेरा पुत्र उस पर से चल कर आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। It's the same thing God will say to your problem today. और वही बातें आपकी समस्या में आज वो कह रहा है। Today, my God is saying to your problem, A problem cannot because my son is coming to my church. और वही बातें परमेश्वर कह रहा है कि शैतान से कि जो भी बेटा बेटी मेरे कलीसिया में आ रहे हैं वो सारे उनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम दूर होने वाली, समस्या दूर होने वाली है। हालेलुया। Hallelujah. This is the mystery hidden in that Peter and Jesus story. और यही एक अद्भुत बात है, गुप्त बात है उस पतरस के लिए और उस प्रभु यीशु मसीह की कहानी में छुपी हुई God है। will not do anything only one thing in every time. He will do two things in every time. गॉड परमेश्वर जो है वो एक वक्त पे एक बात नहीं करता, मगर एक वक्त पे वो दो बातें करता है। Hallelujah. हालेलुया। He said, come to Peter, उसने कहा पतरस तू आ जा and he said to water to bind up. और उसने पानी से कहा कि तू एक हो जा। Hallelujah. हालेलुया। The same happened in Red Sea also. और वही बातें हम देखते हैं लाल समुद्र के वक्त। Hallelujah. हालेलुया। Only we heard that Red Sea was divided, right? हमने सिर्फ सुना कि जो लाल समुद्र है वो दो भागों में अलग किया गया है। See, if you divide the sea, then you will see the sand in that, right? और जब समुद्र दो भागों में डिवाइड अलग हो जाता है तब हम उसमें रेत को देखते हैं। So we cannot walk on the sand, right? हम उस रेत पर चल नहीं पाते। So just read what is written in that. Just we'll see once. मेरे साथ निकाल लीजिए क्या लिखा है उसमें। Exodus. निर्गमन Just turn your Bibles to Exodus. Crossing the sea, right? निर्गमन Yeah, it is in 14. 14 निर्गमन 14 21. 21वीं आयत। Just read someone. निर्गमन 14 21वीं आयत। कोई तो पढ़िए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर चढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड तूफान चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो। Hallelujah. हालेलुया। He not just divided the sea, और उसने सिर्फ समुद्र को दो भागों में अलग किया, but he made the land dry. उसने उस जमीन को सुखा दिया। Hallelujah. Hallelujah. Because you know my people cannot walk on the sand, so he made the land dry. परमेश्वर को पता था कि मेरे लोग उस रेत पर नहीं चल सकते, इसलिए उसने उस जमीन को सुखा दिया। So every time when God says something, He will do two things in that. और इसलिए जब परमेश्वर आपसे कहता है एक बात, वहां पर परमेश्वर दो बातें वो करता है। Hallelujah. हालेलुया। You have to hear carefully what God is saying to और you. उस वक्त आपको सुनना है परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So how many people are ready to
और कितने लोग यहाँ पर तैयार हैं to receive a great prosperity in your life? और आप उस महान आशीष को पाने के लिए, A great prosperity in your life. बड़ी आशीष को पाने के लिए God did not choose us only to be in lakhs or in thousands. परमेश्वर हमें इसलिए नहीं चुना कि हम लाखों में, हजारों में और लाखों में गिने। No, no, no. He wanted us to take us to crores and millions. परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे पास करोड़ और अरबों रुपए रहे। Hallelujah. Hallelujah. Because he know if we show something to the world, then only the world can change. और उसे पता है कि अगर मैं दुनिया को कोई बात बताऊंगा तब दुनिया बदल जाएगी। He cannot come and he cannot show everything. It is you and me who have to show the world that what we are. वो स्वयं आकर हमेशा नहीं बता सकता, मगर आप और मैं है जो बता सकते हैं इस दुनिया को कि परमेश्वर क्या है। If we carry the healings in our body, अगर हम उस चंगाई को हमारे शरीर में लेके घूम रहे हैं, automatically these people will come to the church and they will get healings. और इसी तरह जो लोग बीमार है वो अपनी कलीसिया में आएंगे और चंगाई को पाएंगे।